Okay. So let me open up the slides and then we will start the lecture. Hello. So all of the students can listen. आप सब Yes, लोगों को sir. आवाज आ रही है? Ji, sir. Okay, so any questions from the last lecture, spanning tree and depth first search? Yes, sir, I have a question. You got a question? Okay, so let me open the slide and then I can answer you the question. Okay. Yes, Safa, what question you Okay, so have? my question is that, you know, when you're on a specific node and then you're choosing another one, you're like updating, you're choosing another node with a smaller distance. No, But the question is regarding BFS or DFS? the question is regarding DFS. It It's is actually, depth it first search. applies to both. Okay, so let's come here now. Okay, ask. So what if like the weight is the same and then the number inside of the node is also the same? And which one do you choose? The node number is unique always, so it cannot be same. Sorry? Node number is always unique. Okay, so you just, all right, makes sense. Okay, That's about it. okay. Husband is injured. Stop. Stop, please, wait. Don't be scared. We need your Okay, Safa, when you unmute, there is a noise coming from your mic. Please check your mic. Okay, so we are talking about minimum spanning tree. So what is spanning tree? Anybody who can tell me what is spanning tree? Nada Muhammad, yes. All nodes are connected. Number of edges is n minus 1 and all the nodes belong to the graph. Sorry, all the edges belong to the graph. Excellent. Muhammad Mahmood, yes. Sir, it's like a barely connected graph. Yeah, same thing. Okay, anybody else? So all nodes are connected. Number one, जैसे इन दोनों ने बताया कि all nodes are connected. Number of nodes, number of edges are n minus 1. All edges belong to the previous graph. So this is called just barely. So this is called spanning tree. This is called spanning tree. यहाँ तक सही है जी? Yes, sir. So spanning tree. Anybody else जो यही चीज repeat कर सके? Anyone? Hamna Irfan, yes. Sir, all nodes are connected. Number of edges are n minus 1. All edges belong to original graph. Okay, so that is called spanning tree. If anybody has any question regarding spanning tree, you can ask right now.
अगर किसी को स्पेनिंग ट्री से कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को स्पेनिंग ट्री से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। Anyone having question from spanning tree? He can ask सर right now. सर Yes, sir. मैंने शायद पिछले लेक्चर नहीं लिया हुआ, तो ना इसमें स्पेनिंग ट्री की ये भी जो बताया, ये तो इन्होंने एट्रीब्यूट्स उसकी बताई है ना, प्रॉपर्टीज के, उसमें ये होगा। तो असल में स्पेनिंग ट्री है ये किस चीज के लिए हम यूज करते हैं? So spanning tree है क्या और हम ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, कोई बता सकता है? जब हम स्पेनिंग ट्री निकाल लेते हैं, यस हम ना, We can use it in network optimization. यस। इसके अलावा जो हमारा स्पेनिंग ट्री BFS से आ रहा था, जैसे कि वो ये था, ये जो आखिरी साइड पर हमें नजर आ रहा है, ये एक स्पेनिंग ट्री है। एट द सेम टाइम ये स्पेनिंग ट्री हमें नोड 1 से बाकी तमाम नोड्स का डिस्टेंस भी दे रहा है। So this is giving the shortest distance from node 1 to node 5. This is giving the shortest distance from node 1 to node 3. This is giving the shortest distance from node 1 to node 5, node 1 to node 4, node 1 to node 6. Let's say कि node 1 UMT है, node 5 अकबर चौक है, node 2 UMT हॉस्टल है, node 3 शौकत खानम हॉस्पिटल है, नोड 4 वादत रोड है, नोड 6 माल रोड है। तो नोड 1 यूएमटी से अगर आपने कहीं भी जाना है तो ये आपको शॉर्टेस्ट पाथ दे रहा है। सो दिस कैन बी यूज्ड इन एल्गोरिथम्स लाइक जो कि गूगल मैप्स में यूज होते हैं, उबर, करीम और B4U जो यूज करती है, यू कैन आल्सो यूज इन दीज एल्गोरिथम्स। यहां तक सही है? Yes, sir. Okay, so now coming back to minimum spanning tree. So हमारे पास मिनिमम स्पेनिंग ट्री निकालने के दो एल्गोरिथम्स हैं, क्रुस्कॉल एंड प्रिंस, जो कि हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये देखना है कि मिनिमम स्पेनिंग ट्री होता क्या है। वी हैव टू एल्गोरिथम्स, क्रुस्कॉल एंड प्रिंस, लेकिन वी हैव टू सी व्हाट इज द मिनिमम स्पेनिंग ट्री। सो दिस इज अ ग्राफ। ये हमारे पास एक ग्राफ है और इसका अगर आपसे कहा जाए इसके वेट्स को फिलहाल भूल जाए, अगर हम इसके वेट्स को भूल जाएं तो इसके कितने स्पेनिंग ट्री पॉसिबल हैं वो आप निकाल के मुझे व्हाट्सएप कर दें। इसके पॉसिबल स्पेनिंग ट्रीज निकाल के मुझे व्हाट्सएप करें। मिनिमम स्पेनिंग ट्री, इसमें से कौन कौन से स्पेनिंग ट्रीज हैं, इस ग्राफ के स्पेनिंग ट्री कौन से हैं, एजेस वेट्स को भूल जाएं, कौन कौन से स्पेनिंग ट्री हैं वो निकाल के मुझे व्हाट्सएप करें।
G Nada. Yes, this is a spanning tree. That is correct. इसके अलावा इसमें एक और स्पेलिंग ट्री भी हो सकता है. आई थिंक इसमें 3 स्पेलिंग ट्री बन सकते हैं. तीनों बनाइए और मुझे व्हाट्सएप करें. Hurry up, boys. Hurry up, girls. Hurry up, hurry up, hurry up. Yes, Nada, it's correct. 3 spelling tree बनते हैं and Nada has sent it correctly. Anybody else? Yes, Hamna, it's correct. Very good. Anyone else? Yes, Safa, it's correct. Boys, hurry up. So the spelling tree, Safa, Hamna, and Nada, you have made correct. Now add the edge. Now add the weights on the edges of these spelling trees. Add the weights. Add the weights on the edges of these spelling trees.
Yes, Nada, it's correct. Mushtaba Ehsan. सर मैं कह रहा था बॉयज ग्रुप में भी चेक करिए। नदा, जो वेट्स आपने डाले हैं, वेट्स का मतलब है वेट्स ऑन द एजेस जो ओरिजिनल ग्राफ में थे। ये तो आपने स्टार्ट और फिनिशिंग टाइम डाल दिया है, सो इट्स नॉट करेक्ट। जी अहमद, आपने 3 स्पेलिंग ट्री बनाने हैं। मुश्तबा एहसन, आपने नोट्स की पोजीशन को चेंज किया है। नोट्स की पोजीशन, ओके, इट्स करेक्ट, इट्स करेक्ट। राना, राना आपका पूरा नाम क्या है? वो व्हाट्सएप प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे अपना पूरा नाम लिखें। यस, इट्स करेक्ट। मोहम्मद अब्दुल्ला, यस, इट्स करेक्ट। जैन खालिद, यस, इट्स करेक्ट। Now we have this. We have 4 spanning trees. Actually, they are not 3. We can have 4 spanning trees. So these are the 4 spanning trees. These are the 4 spanning trees. पहला spanning tree है, दूसरा spanning tree है, तीसरा spanning tree है और चौथा spanning tree है। We have 4 spanning trees. यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है तो पूछ सकता है। ये 4 स्पेलिंग ट्री बन रहे हैं। So no one tried more than 3, although I asked them to make 3, but there are 4 actually. So 4 spelling trees are possible here. There are 4 spelling trees that are possible here. So these are the 4 spelling trees. So the first spelling tree, 7 plus 1, 8 plus 5, 30 plus 10, 93 plus 20, 113. इसका जो टोटल वेट है वो 113 है। ये जो स्पेलिंग ट्री है, इसके अगर वेट्स को ऐड कर दिया जाए तो दैट इज 113। ये जो स्पेलिंग ट्री है, इसके अगर वेट्स को ऐड कर दिया जाए तो दैट इज 3 plus 1 4, 4 plus 5 9, 9 plus 80, 89 plus 20 109. Then we have 20 plus 80 100, 10 111. So this is 111. And then we have a weight 20 plus 5 25 plus 7 32, 35 36. We have a weight of 36. ये 4 हमारे पास स्पेलिंग ट्रीज है, जिसमें से एक का वेट 113 है, दूसरे का 109 है, तीसरे का 111 है और चौथे का 36 है। इसमें से वो कौन सा स्पेलिंग ट्री है जिसका मिनिमम वेट है वो 36 है? सो दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्पेलिंग ट्री। This is called minimum spanning tree. Anyone? यहां तक समझ आ गई पॉइंट? यहां तक किसी को समझ ना आया हो? यहां तक अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो मेरे से पूछ सकता है। यहां तक सब समझ आ गया? Yes, sir. मोहम्मद महमूद विर्क, सर वो 80 और वो 20 किस तरह इतना बड़ा बड़ा वेट आ गया सर? ओरिजिनल ग्राफ में यहाँ पर 80 था तो इस एज पर 80 लग जाएगा। ओरिजिनल ग्राफ में यहाँ पर 20 था तो इस एज पे 20 लग जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, सो लेट मी मेक अनदर ग्राफ और मैं आपसे कहूंगा कि उसके स्पेलिंग ट्रीज बना के दिखाएं।
1. मिनिमम स्पेलिंग ट्री क्या होगा? What is its minimum spanning tree? इसका मिनिमम स्पेलिंग ट्री बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें. लेट्स सी हु सेंड्स फर्स्ट. So Nada, it's correct. First correct by Nada. Ahmed, yes, it's correct. First correct by Ahmed. Yes, Hamna, it's correct. Second correct. Hurry up, guys. Mohammed Yaqub, yes, it's correct. Hiba Javed. Muhammad Abdullah. Yes, it's correct.
राना, तंसीर नासिर। तंसीर नासिर, आप अपने प्रोफाइल पर, व्हाट्सएप प्रोफाइल पर राना की बजाय तंसीर नासिर लिखें या राना तंसीर लिखें। ओके सर, अभी लिख देता हूँ। जैन खालिद, यस इट्स करेक्ट। सो जिन जिन लोगों को मैं करेक्ट कह रहा हूँ दे हैव द सॉल्यूशन। तो क्या मुझे इसका सॉल्यूशन भेजने की जरूरत है? ओके, सो लेट मी गिव यू द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जो है वो ये होगा। So this will be the solution, और आप में से मेजॉरिटी लोगों ने इसे सही किया है। जी राना, आपने अभी तक चेंज नहीं किया और यू हैव डन इट? ओके, सो यहां तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अहमद रजा, क्या सवाल है? सर एक चीज नहीं समझ आ रही सर ये रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। अहमद रजा, यस सर। सर मैंने ये पूछना था, जो ओरिजिनल ग्राफ में जो 100, 30, 10, 2 ये वेट दिए हैं, ये किस चीज को, सब इस चीज की समझ नहीं आती, ये कैसे उन्होंने 100 दे दिया, 10 कैसे दे दिया? ओके, सो अहमद रजा यही सवाल दोबारा पूछें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो वेटेज दिए हुए हैं 100, 30, 10, सर इस चीज की समझ नहीं आ रही। 1, 2 की तो चलो समझ आ गई, जैसे हमने पहले बस सर्च में किया था। इनके इतने वेटेज कैसे हो गए? ओके ओके, सबसे पहले सवाल अहमद रजा का ये है कि ये जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है इसमें इतने सारे ये जो वेट्स दिए हुए 100, 1, 10, 2, 3, 30, ये वेट्स क्यों दिए हुए हैं? इसका मकसद क्या है? क्यों देते हैं वेट्स ग्राफ में? कोई बता सकता है क्या वेट्स क्यों दे रहे हैं? शायद इसका जवाब मैंने आज के लेक्चर में शुरू में दिया भी है और लास्ट लेक्चर में भी दिया था, लेकिन इसको दोबारा से कोई दे सकता है जवाब कि हम ये वेट्स क्यों देते हैं? यस सफा, यस। Sir, this is showing the distance between the two nodes. Yes, good. This is showing the distance between the two nodes. 100 को मैं 100 किलोमीटर भी कह सकता हूँ, 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। सो बुनियादी तौर पर सबसे पहला सवाल ये है कि हम ग्राफ यूज क्यों करते हैं? हम ग्राफ को यूज करते हैं ताकि हम रियल वर्ल्ड चीजों को मॉडल कर सके। हम रियल वर्ल्ड चीजों को मॉडल कर सकें। तो मैं 1 को लेट से, अगर हम ट्रैफिक की बात करते हैं, इट कुड बी एनी प्रॉब्लम, ट्रैफिक भी हो सकती है, इट कुड बी कैनाल सिस्टम, नहरी निजाम हो सकता है, इट कुड बी नेटवर्क प्रॉब्लम जिसमें राउटर्स हो सकते हैं। किसी इन तमाम चीजों को हम ग्राफ के जरिए जो है वो रिप्रेजेंट करके फिर हम ग्राफ एल्गोरिथम लगाकर उसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके सर, अब सवाल ये है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है? तो वो बेतहा हो सकती है। जैसे मैं कहूँ कि यार ये 1 जो है ये यूएमटी है, 2 जो है वो शौकत खाना, 2 जो है लेट्स से सियालकोट है, 4 जो है इट्स समथिंग यूएमटी के पास कॉलेज रोड है, 3 जो है वो यूएमटी के पास अकबर चौक है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म की जगह हैं और इनसे इनका डिस्टेंस 100 का मतलब 100 किलोमीटर, 30 का मतलब 30 किलोमीटर, 20 का मतलब 2 का मतलब 2 किलोमीटर,
10 का मतलब 10 किलोमीटर, 1 का मतलब 1 किलोमीटर, 1 का मतलब 1 किलोमीटर। तो ये क्यों यूज किया जाएगा? ताकि हम डिस्टेंसेस निकाल सकें, मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकें, या ऐसा नेटवर्क जिसमें मिनिमम डिस्टेंस कौन सा है वो निकाल सकें। सो ये हम ट्रैफिक प्रॉब्लम को मॉनिटर करने के लिए दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी। ये तो ग्राफ आपको इनपुट में दिया हुआ है, लेकिन दिस कुड बी वन पॉसिबिलिटी। जी क्या सवाल है मिर्जा? सर एक क्वेश्चन ये था कि जैसे कि 1 से लेके 2 के नोड में हमारे पास 2 डिस्टेंस है, इसका 100 किलोमीटर है, ठीक है। जो आपने इसका आंसर निकाला, हम पहले 1 से 3 और 3 से 2 पे जाएंगे तो हमारा शॉर्ट डिस्टेंस बनेगा 11 किलोमीटर। कैसे हम नोड को क्लियर करते हैं? यस, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 2 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, तो दैट इज फ्रॉम 1 to 3, हम 3 3 पे to पहले जाएंगे और फिर ठीक हो गया। जी बिल्कुल। तो ये इस हमें तरह फायदा से होता है। आपका जो गूगल मैप है वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकाल के देता है वो इन्हीं ग्राफ एल्गोरिथम्स के थ्रू निकाल के देता है। ठीक हो गया कि 1 से 3, 3 से 2 शॉर्टेस्ट है, 1 से 2 पे मत जाओ। 1 से 2 एक लंबा रास्ता है, 1 से 3, 3 से 2 बिल्कुल शॉर्टेस्ट है। तो वो आपको बताएगा यार 1 से 3, 3 से 2 पे चले जाओ। तो दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ ग्राफ एल्गोरिथम्स, कि उनको मॉडल करने में एक तो नजर बड़ा आसानी से आ रहा है, और इस पर हम मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स लगा के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हम डाइजेस्टर एल्गोरिथम आगे पढ़ेंगे उसमें हम 1 से जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ यूज होती हैं? ये सारी चीजें आप उबर पे, करीम पे, गूगल मैप्स पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप सबने गूगल मैप तो यूज किया ही होगा। तो गूगल मैप यूजेस डाइजेस्टर एल्गोरिथम, गूगल मैप uses digester algorithm to monitor it beside using few other things. जी यहाँ तक सही है सफा? क्या सवाल है? सर कोई सवाल नहीं है। Sorry. Okay, good. Oh, my hand. So इसी तरह से हम अगर ये मॉनिटर करना चाहें कि 1 से 2 डेस्टिनेशन के अंदर ट्रैफिक कितनी है, 100 का मतलब है 100 व्हीकल्स। अगर हम 1 से 2 डिस्टेंस लेते हैं तो 100 व्हीकल्स यानी 100 गाड़ियां इस रास्ते पे मौजूद हैं, यानी कि ये रास्ता जो है वो कंजेस्टेड ज्यादा है। 1 से 3, 3 से 2 अगर हम लेते हैं तो इसमें सिर्फ एक गाड़ी है, इसमें सिर्फ 10 गाड़ी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम मॉनिटर कर रहे हैं किस चीज को? ट्रैफिक कंजेशन को। अब हम डिस्टेंस को मॉनिटर नहीं कर रहे, बल्कि हमने कहा जी 1 से 4 सिर्फ एक गाड़ी है इस रास्ते में, 2 से 4 30 गाड़ी है, 1 से 3 एक गाड़ी है, एंड सो ऑन। इसका क्या मतलब है? यू आर मॉनिटरिंग द ट्रैफिक कंजेशन। आप ट्रैफिक कंजेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। यहां तक सही है जी? यस सर। सर ये मेरा एक क्वेश्चन है। यस सर ये 1 से 4 पे जब हम पहले ग्राफ में जा रहे हैं तो ये इसका 1 डिस्टेंस है, दूसरे में जब हम गए हैं 1 से 4 पे तो इसका 2 हो गया है। उस सर ने गलत लिखा, 1 ही आएगा। नहीं 1 ही आएगा जी, ठीक है सर। 1 आएगा। इसी तरह से अगर हम इस चीज को ऐसे लेते हैं कि जी टाइम कितना लग रहा है, 1 से 2 पे टाइम 100 मिनट लगेगा, 1 से 3 पर टाइम 1 मिनट लगेगा, 3 से 2 पे टाइम 10 मिनट लगेगा। हम इसको टाइम के लिहाज से भी बना सकते हैं और उस तरह भी मेंशन कर सकते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज, राइट? इसी तरह से हम नहरी निजाम को बना सकते हैं कि ये एक जगह है जहां से नहर जो है 1 से 2 पर जा रही है, ये कैनाल सिस्टम को हम मॉनिटर कर रहे हैं। 1 से 3 पे जो कैनाल है वो 1 से 3 पे जा रही है, 3 से 4 पे जा रही है। सो दिस इज ऑल कैनाल सिस्टम। इसके अंदर क्या हो रहा है कि 1 से 2 पर लेट्स से कि नहर की गहराई जो है 100 फीट है, 1 से 3 पर 1 फीट है, 3 से 2 पर 10 फीट है, एंड सो ऑन। सो दिस काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि हम ग्राफ के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। लेकिन ग्राफ जब बन गया उसके बाद एल्गोरिथम वही लगाएंगे जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो सेम एल्गोरिथम्स जो हम लगाकर बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? कोई सवाल हो तो पूछ लें। Any question, sir? Okay, so coming back to the slide and let's start with the algorithm.
मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का एक एल्गोरिथम है जिसको हम कहते हैं क्रुस्कॉल। क्या नाम है जी? मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालने का एल्गोरिथम है, दैट इज कॉल्ड क्रुस्कॉल। क्रुस्कॉल एल्गोरिथम क्या करेगा? आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेगा। अच्छा, अगर एल्गोरिथम नहीं होता, जैसे हमने खुद देख के निकाले हैं, तो देख के तो हम निकाल सकते हैं, बट अवर कंप्यूटर्स कैन नॉट सी इट, सो वी नीड सम एल्गोरिथम टू डू दैट, राइट? हमारा एल्गोरिथम जो है वही कंप्यूटर पर चलेगा, तो इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बेहतर तरीके से निकल सकेगा। हाँ, देखकर तो हम बीइंग अ ह्यूमंस निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें नोड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। So we have 11 nodes. ये एल्गोरिथम इंतहाई आसान है, वेरी सिंपल एल्गोरिथम। It's a very simple algorithm. The most simple algorithm. How to do that? सबसे पहले हम सबसे मिनिमम एज वेट लेंगे। सबसे मिनिमम वेट कौन सा है? 8 9। The node 8 to node 9. This is the minimum weight. Minimum weight है node 8 to node 9. This is the minimum weight node 8 9. So we will take this 8 9 node. इसको आप इसी के ऊपर डबल मार्क कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहां पर 8 से 9 ले लिया। अब सेकंड स्मॉलेस्ट वेट कौन सा है? 2 है जी। सेकंड स्मॉलेस्ट वेट है 2। तो वी विल टेक 8 to 7 which is 2। इसको हम डबल कर देंगे। ये देखिए जी, हमने 8 से 7 इसको डबल कर दिया। इससे अगला स्मॉलेस्ट नोड कौन सा है जी? ये 3 है या ये 3 है, कोई भी ले सकते हैं। तो लेट्स टेक 9 to 10। तो हमने क्या किया? 9 to 10 ये वेट डबल कर दिया। ये देखिए 9 to 10 दिस वेट इज ऑल्सो टेकन। यहां तक सही है? यस सर। उसके बाद कौन सा स्मॉलेस्ट है? 6 to 7। तो हमने 6 to 7 भी वेट ले लिया। So this is 6 to 7 and we have taken this weight. Then we have which one? Then we have which one is smaller? 10 to 11। 10 to 11। So we will take this और इसको डबल कर दिया। So यहाँ पर आ जाएगा 10 to 11 and we make it double। यहाँ तक सही है? यस सर। और अब हमारे पास कौन सा है जी? 6 से 5। 6 to 5। ये 7 है, इसको हमने ले लिया। That is fine। अब कौन सा लेना है जी? 5 to 3। 7 to 9। 7 to 9। This is an edge जो कि शायद प्रॉपर नजर नहीं आया। This is an edge। Now we take this। लेकिन क्या हम इसे लेंगे? नो सर। नो। नो सर। क्यों? क्यों? क्योंकि अगर हमने जाना है, हमने 7 से 9 तक जाना है, तो हम 8 से अगर जाएंगे तो हमारा 3 लगेगा। अगर 7 से हम डायरेक्ट 9 पे जाएंगे तो हमारा 7 मीटर लगेगा। नो नो नो, ये तो हम देख के बता रहे हैं। एल्गोरिथम को कैसे पता चलेगा कि ये एज लेना है या नहीं? नदा मोहम्मद। यस कि सर ये ऑलरेडी बकेट में है, ये दोनों No. नोड्स 7 और 9। 7 to 9 नो, दैट इज फाइन। लेकिन हम इस वक्त इस एल्गोरिथम में हम एजेस को देखते हैं। वी एक्चुअली गो ओवर ईच एज, वी डोंट केयर अबाउट द नोड्स एंड देयर इज नो बकेट हियर। सो 7 to 9 मोहम्मद महमूद वेयर
सर हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है. No, that is what we see. The algorithm cannot see this. We have to apply algorithms step by step. So 7 to 9 हम क्यों नहीं लेंगे, ये सवाल है जी. Why we will not take the edge 7 to 9? Because it has some problems and I want you to figure out the problem. Why we cannot take 7 to 9? Yes. Why we cannot take 7 to 9? सेवन टू नाइन एज जो है हम क्यों नहीं ले सकते? अगर हम 7 to 9 एज लेते हैं तो साइकिल बनती है. हमने एज सिर्फ तब लेना है जब साइकिल ना बन रही हो. अगर साइकिल बन रही है वी कैन नॉट टेक द एज. तो ये देखिए 879 वो इधर घूमता रहेगा. सो दिस इज अ साइकिल. सो वी कैन नॉट टेक दिस एज बिकॉज देयर इज अ साइकिल बीइंग फॉर्म्ड. हम इस एज को नहीं ले सकते क्योंकि इसमें क्लोज पाथ 879. Okay, sir. Cycle is a closed path. So let me give you some examples of a cycle. So this is node 1, this is node 2, this is node 3. सबसे पहले तो ये सवाल है कि क्या इस ग्राफ में साइकिल बन रही है? Yes, sir. 1 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. So this is a closed path. Number 1. अगर किसी ग्राफ में साइकिल बन रही हो तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता. स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं हो सकती. स्पैनिंग ट्री कैन नॉट हैव अ साइकिल. अगर किसी ग्राफ में अगर किसी स्पैनिंग ट्री में अगर किसी ग्राफ में साइकिल हो तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता. स्पैनिंग ट्री में कभी साइकिल नहीं होती. इसके कितने स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है? हाउ मेनी स्पैनिंग ट्रीज आर पॉसिबल? तो इसके स्पैनिंग ट्रीज बना के मुझे व्हाट्सएप करें. हरी अप. इसके पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज कौन से हैं? How many possible spanning trees? जल्दी से बना के व्हाट्सएप करें. It should be very quick. You can do it in no time. It should be very quick. 3. Yes, there are 3 spanning trees. Make them, send them. Make them, send them. Quick, quick, quick. Yes, Hamna, it's correct. Yes, Nada, it's correct. उनके ऊपर वेट्स भी लिख दें. सफा, yes, it's correct. आपने वेट्स भी लिखे हुए. Very good. Yes, it's correct. Yes, Mohammed, it's correct. So there are 3 spanning trees which are possible. And what are those? This, 3.
this, this, this. There are three possible, this or this. Or this. So these are the three spanning trees. इसमें से minimum spanning tree कौन सा होगा? Raise your hand before you speak, sir. Nada. सर जो सर ये सबसे पहले ऊपर वाला 5 and 10 वाला 5 and 10. सॉरी Anybody सर else? 5 7 वाला Mohammad Mahmood Virk, yes. तो ये 14 वाला सर, ये 5 और 7 वाला 5 और 7 नदा ने भी यही बताया. मोहम्मद अब्दुल्ला. सर ये 14 वाला ये 5 और 10 5 और 10 वाला नहीं होगा? 14 वाला कौन सा है? 14 वाला कोई नहीं है. सर सॉरी 12 वाला सर 7 और 5 वाला जो है ये. So this 7 और 5 इसकी जो वेट है वो है 12. इसका जो वेट है 10 plus 7 17. 10 plus 5 is 15. So ये जो this spanning tree with a weight 12 is called minimum spanning tree. ये minimum spanning tree है. आप में से मेरा एक सवाल है, इन तीनों spanning trees में से किसी भी spanning tree में कोई साइकिल नजर आ रही है आपको? No. No. So if spanning tree में साइकिल मुमकिन नहीं है, spanning tree में साइकिल नहीं होती. This is a minimum spanning tree. This is a minimum spanning tree. This is a minimum spanning tree. Sir, raise your hand, don't speak. So this is a minimum spanning tree with a weight 12. Sir, मेरे इधर opening नहीं है. Keep quiet. This is a minimum spanning tree with a weight 12. This is a minimum spanning tree with weight. This is a spanning tree with weight 17. This is a spanning tree with weight 15. This is a spanning tree with weight 12. But this is because having the lowest weight is the minimum spanning tree. This is the spanning tree with minimum spanning tree. This is called minimum spanning tree. जी अयूब क्या सवाल है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 12 वाला मिनिमम है, अब ये 1 से अगर हमने 3 पे जाना है इसमें तो हमें 12 लगेगा डिस्टेंस, लेकिन अगर हम पहले वाले को देखें तो हमने 1 से 3 पे जाना है तो हमें 10 लग रहा है डिस्टेंस, तो मिनिमम ये ना होगा 1 ये सर ऊपर वाला है ना 1 3. यस जी सर बताइए. अब हमने क्या करना है? ये 1 नहीं था ऊपर, नहीं ये 1 है. Oh, okay. Sorry. This is 1. This is 2. And this is 3. ऐसा ही है? Yes, sir. जी बताएं. तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब हमने 1 से 3 पे जाना है तो हमें 12 डिस्टेंस लगेगा. Yes. You're right. लेकिन अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो हमें 1 से 3 पे जाने के लिए 10 डिस्टेंस लग रहा है सिर्फ. Yes, that is true. So minimum spanning tree आपको, मैंने ये कभी नहीं कहा था कि minimum spanning tree आपको shortest distance from one node देता है. मैंने इस distances को plot किया था. मैंने इस distance को प्लॉट करने के लिए ग्राफ इस्तेमाल किया था कि 1 से 2 पे 5 डिस्टेंस लग रहा है, 2 से 3 पर 7, 3 से 1 पे 10. लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब है कि नोड 1 से बाकी नोड्स की तरफ स्मॉलेस्ट पाथ. दैट इज नॉट मिनिमम स्पैनिंग ट्री. दैट इज कॉल्ड डाइजेस्टर एल्गोरिथम, जो हमें सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ देता है. अगर आप चाहते हैं कि नोड 1 से 2 का स्मॉलेस्ट पाथ मिले, नोड 1 से 3 का शॉर्टेस्ट पाथ मिले, नोड 1 से 2 का शॉर्टेस्ट पाथ मिले, तो हम क्या करेंगे? वी विल अप्लाई डाइजेस्टर एल्गोरिथम, जो कि हम
अगले लेक्चर्स में अप्लाई करेंगे। यानी क्रुस्कॉल के बाद प्रिम्स है, प्रिम्स के बाद वी विल अप्लाई डाइजेस्ट्रा। तो डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम अप्लाई करके हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। एट द सेम टाइम मैंने कहा था कि अनवेटेड ग्राफ में BFS आल्सो सर्व एज सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पर्पस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम वन नोड टू अदर नोड निकालना नहीं है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री का मतलब नेटवर्क का टोटल ट्रैफिक को मिनिमाइज करना है। जैसे अगर 1 2 3 है, इस टोटल नेटवर्क में हम चाहते हैं कि ऐसा स्पैनिंग ट्री निकालें जिसकी ओवरऑल कॉस्ट सबसे छोटी हो, तो वो ये है। दिस इज नॉट फॉर फाइंडिंग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम इज कॉल्ड डाइजेस्ट्रा। कौन सा एल्गोरिथम कहते हैं उसे? Digestra. So let me do it here. Can I write it somewhere? Okay, there is no writing option right now. तो Digestra हम पढ़ेंगे, उसमें हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। So this is not single source shortest path. We are finding minimum spanning tree right now. यहाँ तक सही है जी? Okay, Yes. तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये एक नेटवर्क है, इसमें से ऐसा स्पैनिंग ट्री निकाल दो जिसमें ट्रैफिक ओवरऑल मिनिमम हो, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ये वो नेटवर्क है जिसमें ओवरऑल ट्रैफिक मिनिमम है, ये वो नेटवर्क है जिसमें ट्रैफिक सबसे ज्यादा है, ये वो स्पैनिंग ट्री है जिसमें ट्रैफिक इंटरमीडिएट है। दिस इज अ स्पैनिंग ट्री विद द लोएस्ट ट्रैफिक ऑल ओवर द नेटवर्क। मुश्तबा एहसन, यस सर टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास का टाइम। जी, ये मैं अभी 10 मिनट है, जस्ट वेट, मुझे ये लेक्चर कंप्लीट करने दें, क्योंकि हम जिस लेवल पे हैं आगे 5 मिनट में आपको लेक्चर समझ आ जाएगा अगर आप खामोश रहे तो। सर नेक्स्ट क्लास में क्विज है सर। ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। So what's going on? For example, this is where is the whiteboard? Yes, here we have, this is the minimum spanning tree. अगर आपसे कोई कहे कि ये minimum spanning tree तो आपने आंखों से देख के निकाला है, अगर आपसे कोई कहे कि क्रुस्कॉल अप्लाई करके मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालो, तो कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा वेट लेंगे, which is 5. So let me do it. इसको, where is the rubber? Yes. So what we will do is we will take the smallest. This is 1, 2. We will take 1 to 5, right? या तो मैं ऐसे 1 to 5 ले लूं या इसको डबल कर दूं, एक ही बात है। उसके बाद मैं कौन सा एज लूंगा? 7 2 3 2 to 3. Yes, 2 3, which is 7, क्योंकि ये सेकंड मिनिमम है। उसके बाद मैं कौन सा एज लूंगा? तमाम एजेस पे जाना है। 10, क्या 10 को लेने के बाद साइकिल बन रही है? Yes sir. तो मैं इसको नहीं लूंगा। 5 को लिया, साइकिल नहीं बन रही थी। 7 को लिया, साइकिल नहीं बन रही थी। 10 को लिया, साइकिल बन रही थी, तो आई विल नॉट टेक दिस। दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ये वही है जो ये है, लेकिन ये हमने कैसे निकाला है? यूजिंग क्रुस्कॉल एल्गोरिथम। सो लेट्स कम बैक टू अवर ओरिजिनल एल्गोरिथम। इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं विद इन 1 मिनट। तो अब हमने देखा 7 पे साइकिल बन रही थी, तो हमने 7 नहीं लिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा एज आ गया? 5 to 3. Yes, 5 to 3. 5 to 3 में लेने के बाद साइकिल बन रही है? नो, तो हमने 8 ले लिया। 9 लिया, साइकिल बन रही है? नो, तो हमने 9 ले लिया। 140, उसके बाद 9 के बाद कौन सा रह गया जी? 9 के बाद 12 लिया, साइकिल बन रही है? नो,
उसके बाद कौन सा रह गया जी? उसके बाद रह गया 40 लिया, साइकिल बन रही है? नो। उसके बाद 50 लिया, साइकिल बन रही है? नो सर। Yes, अगर हम 50 लेते हैं तो साइकिल बनेगी कि नहीं? बन रही है। यस सर। बनेगी, ये साइकिल बन जाएगी, ये यस सर ये बन घूमता रही है। रहेगा। तो वी विल नॉट टेक इट। 100 लिया, साइकिल बन रही है? Yes. यस सर। Yes, ये यूं घूमता रहेगा, तो 100 भी नहीं लेंगे। तो दिस इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ओरिजिनल ग्राफ। इसमें से एक एक एज खत्म कर दें, तो जो डबल एजेस होंगे उसमें से एक रह जाएगा, और जो सिंगल एज होगा वो खत्म हो जाएगा। यानी हर नोड्स के दरमियान एक एक एज खत्म कर दें, तो क्या होगा? डबल सिंगल एज में एज से एक रह रह गई। जाएगा और सिंगल एज खत्म हो जाएगा, एंड डबल एज में से जो एक रह जाएगा वही स्पैनिंग ट्री होगा, and that will be the minimum spanning tree. So this is the minimum spanning tree. Any questions? नो सर। Okay, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।